بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تم نے کسی کا درد محسوس کرنا نہیں سیکھا تو زندگی میں کچھ نہیں سیکھا۔ عجیب طرح سے گزر رہی ہے زندگی، سوچا کچھ، کیا کچھ، ہوا کچھ اور ملا کچھ۔ اس دنیا میں ہم نفرتوں کے اتنا عادی ہو چکے ہیں کہ محبت کرنے والے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پتھر میں ایک نقص ہے کہ وہ کبھی پگھلتا نہیں ہے، لیکن اسی پتھر میں ایک خوبی بھی ہے کہ وہ کبھی بدلتا نہیں ہے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا چاہتے ہیں اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہی منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ دوسروں کو ہر وقت تولنے والے خود بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ رشتے ہمیشہ وہی کامیاب ہوتے ہیں جو دل سے جوڑے جائیں، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ نہ صورت بری نہ سیرت بری، بس برا وہ جس کی نیت بری۔ انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا اچھا اخلاق ہے۔ صبر کریے، اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی تیرا رب ہی ہے۔ جس لمحے آپ سچ بولنے کا فیصلہ کرتے ہیں، وہی لمحہ آپ کی سوچ اور آپ کی عمل کی تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس دنیا میں لین دین کے بغیر کسی کی ایمانداری کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ خوف خود میں کسی شے کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ معاشرے میں امید صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ کامیاب لوگوں کی غیبت کرنا ناکام لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزار لو۔ رب کو اوپر نہ ڈھونڈو، بلکہ ذرا سی گردن نیچے کر لو اور دیکھنا رب تمہیں اپنے دل میں ملے گا۔ اس دنیا میں 3 چیزیں پردہ چاہتی ہیں: کھانا، عورت اور دولت۔ 3 چیزیں انسان کو زندگی میں صرف ایک بار ملتی ہیں: والدین، حسن اور جوانی۔ 3 چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں: حرص، حسد اور غم۔ 3 چیزیں چھوٹی نہ سمجھیں: قرض، مرض اور فرض۔ رابطے حد سے گزر جائیں تو غم ملتا ہے، اس لیے لوگوں سے ہمیشہ دوری اختیار کریں۔ اگر مشکل آپ کے دروازے پر دستک دے تو خوف زدہ نہ ہوں، بلکہ آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ صرف 2 لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہو، اور دوسرا وہ جس کو آپ سے شدید محبت ہو۔ یہاں جو کچھ ہے وہ یہیں رہے گا، لیکن یہاں کی چیزوں کو اپنا کہنے والے یہاں نہیں رہیں گے۔ خواہشات کے پاؤں اگر چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ مشکلات کا پتھر تراشنے کے بعد جو ہیرا نکلتا ہے اسے کامیابی کہتے ہیں۔ زیادہ اچھا ہونا بھی غلط ہوتا ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ لوگ قدر کر رہے ہیں یا استعمال۔ مولا علی نے فرمایا کہ دلوں کا غم گناہوں کو پاک کرتا ہے۔ خدا کو دھوکہ دے کر جنت نہیں خریدی جا سکتی، اور خدا کی اطاعت کے بغیر خدا کی رضامندی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے، انسان اسی کو ناراض کر کے اپنی زندگیوں میں سکون چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے برائی کے کچھ تالے بنائے ہیں جن کی چابی شراب ہے، اور جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ کسی سوال کا جواب معلوم نہ ہو تو لا علمی کا اظہار کر دینا ایک اعلیٰ ظرفی ہے۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، وہ تنقید جیسی سچائی پر ناراض ہوتا ہے اور خوشامد جیسے دھوکے پر خوش ہوتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ جب کوئی شخص دے کر جتلاتا ہے تو اس کے گناہ اس کے صدقے کے ثواب سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔
अगर तुम वो कुछ देख लो जो तुम्हारे मुर्दों ने देखा है तो यकीनन तुम बेताब और परेशान हो जाओगे। जो शख्स हमेशा तुम्हारी खुशी चाहे उसको उदास होना तुम्हारे लिए फिक्र की बात होनी चाहिए। मौला अली ने फरमाया कि ये मुमकिन ही नहीं है कि खुदा दुआ का दरवाज़ा खोला रखे लेकिन कबूलियत का दरवाज़ा बंद कर दे। बाज़ लोगों के मरने से बहुत से लोग मर जाते हैं और बाज़ लोगों के मरने से बहुत से लोग जीने लग जाते हैं और ये अपने अपने किरदार का नतीजा है। जो शख्स किसी का हक ले लेगा तो उसका बदला लिया जाएगा, उसकी नफ्स से, उसके माल से या उसके औलाद से। मौला अली ने फरमाया कि मोमिन की जान हर वक्त इम्तिहान और मुसीबत में रहती है। मोहब्बत रंग दे जाती है जब दिल से दिल मिलते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि दिल बड़े मुश्किल से मिलते हैं। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा खुलूस का होता है जो ज़मीन में नहीं बल्कि दिलों में उगता है। इस दुनिया में जहाँ औरत का एहतराम होता है वहाँ अल्लाह भी खुश होता है। जो शख्स ख्वामा-ख्वाह अपने आप को मोहताज बनाता है उसको अल्लाह ताला हमेशा का मोहताज बना देता है। हम पहले अपने बच्चों को बोलना सिखाते हैं, फिर हम ही उन्हें खामोश रहने की तलकीन करते हैं। इस दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। गुजरी हुई ज़िंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में जो नहीं लिखा उसकी फरियाद ना कर, क्योंकि जो होगा वो होकर ही रहेगा। तो कल की फिक्र में अपनी आज बर्बाद ना कर। इस दुनिया में जिसने फज्र की नमाज तर्क की उसके चेहरे से नूर ख़त्म कर दिया जाता है। जिसने ज़ोहर की नमाज तर्क की उसकी रोज़ी से बरकत ख़त्म कर दी जाती है। जिसने असर की नमाज तर्क की उसके बदन से ताकत कम कर दी जाती है। जिसने मगरिब की नमाज तर्क की उसको औलाद से कोई फ़ायदा ना होगा, और जिसने इशा की नमाज तर्क की उसकी नींद से राहत ख़त्म कर दी जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी नमाज़ों का एहतराम करें। छोटे छोटे शिकवों से बड़े बड़े रिश्ते अक्सर कमज़ोर हो जाते हैं। अपने अल्लाह के आगे झुको, फिर देखना वो अल्लाह तुम्हें किसी के सामने झुकने नहीं देगा। जिन लोगों की तरबियत में कमी रह जाती है वो दूसरों को ताने मारने, ऐब जोई करने, कीड़े निकालने, इल्ज़ाम तराशी और बहतान लगाने जैसी साजिशों में ज़िंदगी भर मुब्तला रहते हैं। इस दुनिया में इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसके अच्छा इखलाक है। घर सोना चांदी से नहीं बल्कि हमेशा अच्छे अखलाक से आबाद होता है। अपनी सोच को बदलो, फिर देखना आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। दौलतमंद की आजिज़ी, जवानी की इबादत, गरीब की सखावत और गुनाहगार की तौबा अल्लाह को बहुत पसंद है। इस दुनिया में समझदार इंसान गैरों से बातें सुनकर अपनों से बहस नहीं करता। कहानियों के आखिर में सारे मसले ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हकीकत ज़िंदगी में मसाइल ख़त्म नहीं होते बल्कि इंसान ख़त्म हो जाता है। इस दुनिया में खुदा का बंदा वही है जो बंदों का खुदा ना बने। ला हासिल की तमन्ना खुद की ज़ात के साथ वो ज़ाती है जिसमें इंसान हर वक्त अपनी हार का दुख मनाता रहता है। शैतान सबसे पहले इंसान की शर्म व हया पर ज़र्ब लगाता है ताकि गुनाह को आसानी से अंजाम दे सके। आँखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ में नहीं आती। बाज़ औक़ात कोई हमारी खामोशी का भी मुस्तहिक नहीं होता और हम उन्हें अपने एहसासात का तर्जुमा सुना रहे होते हैं। इस कायनात में हकीकी इश्क में ना तो रुसवाई है और ना तन्हाई। बहुत दूर तक इंसान देख लेता है मगर उसी इंसान को अपना गिरबान नजर नहीं आता। कायनात के राज उसी पर खुलते हैं जिस पर अपनी ज़ात का राज खुल चुका हो। इस दुनिया में छोटी सोच और छोटी चीज़ें हमेशा उछलती ज़्यादा हैं।
किसी से भी हसद करना बेकार है, क्योंकि उसके पास जो कुछ भी है वो तुमसे छीना हुआ नहीं है। खामोशी वो खजाना है जिसमें हर कामयाबी का राज मौजूद है। तलाश में बीत गई सारी जिंदगी, लेकिन अब पता चला कि खुद से बड़ा हमसफर कोई नहीं। इंसान को अगर अपनी हैसियत का इल्म हो जाए तो वो पागल हो जाएगा या फौरन मर जाएगा। रवैयों की तकलीफ जब रूह में उतर जाए तो अल्फाज उसका इलाज नहीं कर सकते। अगर कोई आपके गलत रवैये, सवाल या जवाब पर खामोशी इख्तियार कर लेता है तो समझ लेना वो आपसे किरदार में कहीं बड़ा है। इस दुनिया में किसी को तकलीफ या झूठ बोलने से पहले ये सोच लेना कि इस दुनिया में बहाने ख़त्म हो जाते हैं। या अल्लाह, मुझे अपनी मोहब्बत में ऐसा मुकम्मल कर दे कि मुझे तेरी रज़ा के अलावा कोई चाहत ना रहे। अगर नमाज के वक्त तवाफ़े काबा रुक सकता है तो तेरे कारोबार और काम क्यों नहीं। अगर तुमने नमाज छोड़ी तो समझ लो कि राहत और बरकत तुमसे छूट गई। इस दुनिया में जो शख्स अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ लेता है तो उसे ज़रूर सीधी राह की तरफ हिदायत की जाती है। बादशाहों के पास बैठने से कभी बादशाहत नहीं मिला करती, लेकिन औलिया अल्लाह की एक ही निगाह इंसान को बादशाह बना देती है। पीर के दिल में नक्शे खुदाबंदी होता है और मुरीद के दिल पर पीर का नक्श उभरता है। इंसान को जितना लगाव रोजी से है, अगर उतना लगाव रिस्क देने वाले से होता तो उसका मकाम फरिश्तों से बड़ा हो जाता। अल्लाह से कभी मांगने लगो तो औकात देखकर नहीं, बल्कि उसकी शान देखकर मांगना। ताज्जुब है कि अल्लाह इतनी सारी मखलूक में से मुझे नहीं भूलता और मेरा तो एक ही अल्लाह है, पर हाय अफसोस मैं उसे भी भूल जाता हूँ। बर्दाश्त के कानों से सुनो, रहम की आंखों से देखो और मोहब्बत की ज़बान से बात करो। मौलाना रूमी कहते हैं कि तकदीर के लिखे से छुटकारा हासिल करने का रास्ता फ़कत आजिज़ी है। खामोशी समंदर है और गुफ्तगू नहर की तरह है, और तुझे समंदर तलाश कर रहा है लेकिन तू नहर की तलाश में है। सर हो सजदे में, दिल दगाबाजी में हो, तो भला ऐसे सजदों से कैसे खुदा राजी हो। अपने किरदार पर डालकर पर्दा ए इकबाल, हर शख्स कह रहा है कि ज़माना ख़राब है। अगर 1000 मुनाफिक मिलकर आपकी जड़ें भी काट दें, और अगर कोई एक अच्छा ख़ानदानी और मुखलिस दोस्त आपको सहारा दे, तो यकीन मानिए तो आप कभी गिन नहीं सकते। कम रिश्ते बनाइए लेकिन मुखलिसी से निभाइए, क्योंकि मोहब्बत तो बहुत से लोग आपसे कर सकते हैं, लेकिन मुखलिस सारे नहीं होते। जिंदगी में इन 2 लोगों पर कभी तबसरा ना करो, जिनको तुम चुन लो और जिनको तुम छोड़ दो। तुम्हारी वजह से अगर कोई बेसुकून हो जाए तो याद रखो कि तुम जालिमों में से हो। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार बनता है। दीवारें छोटी होती थीं लेकिन पर्दे होते थे, और ताले की इजाज़त से पहले सिर्फ भरोसे होते थे। परेशान मत हुआ करो, क्योंकि ठोकर उन्हीं को लगती है जिन्हें अल्लाह थामना चाहता है। गीबत करना कमज़ोर आदमी की आखिरी कोशिश होती है। बुराई की तरफ नफ्स दौड़कर जाती है, जबकि नेकी की तरफ उसे घिसट कर लाना पड़ता है। इस दुनिया में माँ बाप की रोक टोक भी एक नेमत है, वरना औलाद जगह जगह पर जलील और रुस्वा नजर आए। जिस घर में दीन और नेक माल हो, वो घर तहजीब और इंसानियत का बेहतरीन नुमाइंदा होता है।
मांगने वाले की लोग मदद तो करते हैं मगर पसंद नहीं करते, क्योंकि पसंदीदगी हमेशा खुददारी को मिलती है। जब आपका ज़मीर मलामत करना छोड़ दे तो समझ लो कि अब इंसानियत आप में ख़त्म हो चुकी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो सलामत रहना चाहे वो अपनी ज़बान को महफूज रखे। जो वक्त गुज़र गया उसको याद करके कुछ असूल बना लें तो जो वक्त बाकी रह गया है वो बेहतर हो जाएगा। इस दुनिया में अक्ल वाला अपने काम पर और वहीं जाहिल अपनी उम्मीदों पर भरोसा करता है। जब दुनिया तुम्हें घुटनों के बल गिरा दे तो समझ लो कि ये दुआ मांगने का बेहतरीन वक्त है। कभी तन्हाई महसूस ना करिए, क्योंकि पूरी कायनात आपके अंदर मौजूद है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम बाकी रहे तो अपनी औलादों को अच्छे इखलाक सिखाओ। हाल के बदहाल होने के बावजूद भी मुस्तकबिल के खुशहाल होने की उम्मीद कभी तर्क नहीं करनी चाहिए। जागने वाले जिंदा हों तो सोने वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पढ़ाई का सबसे पहला मकसद शऊर और सवाब कमाना हो, बाकी पैसा तो जाहिल भी कमा लेते हैं। जिसकी नींद पर ख्वाब नाजिल हो वही ताबीर आशना हो सकता है। मुस्तकबिल में जलने वाले चिराग माजी के अंधेरे को दूर कर देते हैं। आंसू खालिक और मखलूक के दरमियान कोई भी पर्दा नहीं रहने देते। अगर इस दुनिया में ख्वाहिश हासिल से ज़्यादा हो तो इंसान खुद को गरीब समझने लगता है। क्या अजीब वक्त चल रहा है। जो बीमार होगा वो तन्हा होगा और जो तन्हा होगा वो बीमार नहीं होगा। जिन्हें अपने छोड़ देते हैं उन्हें गैर मिल जाते हैं। कभी माँ बाप याद आए तो बहन भाई मिलकर बैठा करो, क्योंकि आपका ऐसा करने से किसी के चेहरे पर माँ की मुस्कुराहट नजर आएगी तो किसी के लहजे में बाप का अक्स। जिसको अल्लाह दुआ की तौफीक दे वो कबूलियत से महरूम नहीं रह सकता। जिसको अल्लाह ने इस्तग़फ़ार की तौफीक दी वो मग़फ़िरत से महरूम नहीं रह सकता, और जिसको अल्लाह ने शुक्र की तौफीक दी वो नेमत से महरूम नहीं रह सकता। अल्लाह का ज़िक्र हमारी रूह का और हमारे जिस्म का ताल्लुक़ और राब्ता पैदा करता है, और जब ये राब्ता कायम हो जाता है तो बेचैनी से निजात मिल जाती है। इस दुनिया में ताकतवर का नुकसान ना कीजिए, क्योंकि वो आपकी दुनिया खतरे में डाल सकता है, और वहीं कमज़ोर का नुकसान ना कीजिए, क्योंकि वो आपकी आखिरत को खतरे में डाल सकता है। अपनों से इतनी शिकायतें मत कीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि शिकायतों को दूर करते करते वो खुद ही आपसे दूर हो जाएं। अपने दुश्मन को हमेशा माफ़ कर दो, क्योंकि ये उसको सबसे ज़्यादा अज़ियत देगा। अगर कोई ये कोशिश करता है कि वो सबसे अच्छा समझा जाए तो वो बेवकूफ़ों का सरदार है। झुकी हुई शाख फलदार ज़रूर होती है, मगर ज़्यादा झुकी हुई शाख रास्ते पर चलने वालों के लिए मुश्किलात पैदा करती है। जब कोई हर वक्त तुम्हारी ऐबजोई करे तो उस इंसान को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करो। इस दुनिया में जब किसी आदमी को उसकी बिसात से ज़्यादा दुनिया मिल जाती है तो वो लोगों के साथ बदसलूकी करता है। इस दुनिया में एक समझदार शख्स दूसरे नासमझ को जानता है, क्योंकि एक ज़माने में वो भी नासमझ था, लेकिन एक नासमझ दूसरे समझदार को नहीं जानता, क्योंकि वो कभी भी समझदार नहीं रहा। इस दुनिया में सलामती इसी में है कि अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि जब तक मछली का मुंह बंद रहता है वो कांटे की गिरफ्त में नहीं आती। हज़रत अली ने फरमाया
कि वो जगह छोड़ दो जहां तुम्हारा एहसास और तुम्हारे अल्फाज की कद्र ना हो, चाहे वो फिर किसी का दिल हो या घर। इंसान की फितरत है कि लाहासिल के लिए रोता है और हासिल को रुलाता है। जिसने तुम्हारे साथ बुराई की हो उसके साथ तुम एहसान करके उसका बदला दे दो, क्योंकि एहसान बस ज़बानों की ज़बान बंद कर देता है। अगर आप किसी की मदद इस नियत से कर रहे हैं कि वो बदले में आपको कुछ देगा, तो इसका मतलब ये है कि आप नेकी नहीं बल्कि तिजारत कर रहे हैं। अगर आप इस दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं तो पहले नाकामी का इस्तकबाल करना सीख जाओ। तो पहले नाकामी का इस्तकबाल करने का हौसला पैदा कीजिए। इस दुनिया में जो बहुत अच्छा लगे उससे कम ही मिला करो, क्योंकि इस तरह तुम फायदे में रहोगे। इस दुनिया में नाकामी बरसाती बादल की तरह है और तुम्हारे इरादे एक छाते की तरह। जैसे नजर आना चाहते हो वैसे ही बन जाओ। खामोश रहो, क्योंकि सिर्फ खुदा ही तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सकता है। नफ्स की एक ख्वाहिश पूरी करने से अल्लाह के रास्ते में सैकड़ों रुकावटें पैदा हो जाती हैं।